Kanika Bhardwaj. Welcome you all in the DK classes. So today we'll be studying about the Monera, and Monera is the first kingdom among the 5 kingdom which was given by the R.H. Whittaker. So this is your lecture second from the paper first, and that is the Monera. Now let's see. So bacteria are the sole members of the kingdom Monera. It means what कि Monera के अंदर जितने भी बैक्टीरियंस होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, जो कि डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गुड बैक्टीरियंस होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बैड बैक्टीरियंस होते हैं विच कैन कॉजेज द डिजीज़ टू आर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो और टू अदर ऑर्गेनिज्म also. So those all bacteria belong to this kingdom which is called as what? Monera. Now they are the most abundant microorganisms on the earth. Monerans जो होते हैं they are the most abundant microorganisms on the earth. अब microorganism बोला it means they are so small. So let's see how small they are. They are so small in size that they can be seen under the microscope. It means they can't be seen with the naked eyes. हम उनको अपनी naked eyes से see नहीं कर सकते. We can't visualize them with our naked eyes. We have to use the microscope to visualize them. Now when we are saying that they are the microorganism and they are small in size, then they are the unicellular and prokaryotic in nature. And now when we are saying that they are prokaryotic, that means what? That they do not have any of the true nucleus. इनके पास कोई true nucleus नहीं होता, plus इनके पास कोई भी cell bound organelles भी नहीं होते. What are the cell bound organelles? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स होते हैं, ये सारे सेल बाउंड ऑर्गेनलीज बोलते हैं हम इनको. तो सेल बाउंड ऑर्गेनलीज भी नहीं होते, एंड दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस. सो दैट्स वाई दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर. ओके, so they are the unicellular and prokaryotic in nature. Now next is what? That they have rigid cell wall. इनकी जो cell wall होती है वो बहुत ही ज़्यादा rigid होती है. Their structure is very simple but their behavior is very complex. इनका structure तो बहुत simple होता है. Because why? Because they are the unicellular organism and they are prokaryotic in nature. तो it means कि ये single celled होते हैं, इनके अंदर ना तो कोई cell bound organelles होते हैं, ना true nucleus होता है. तो जो इनका structure होता है वो बहुत ही simple होता है. But जब हम इनके behavior की बात करते हैं, when we are saying that bacteria इनका sole member है, बैक्टीरिया इनका केवल एक मेंबर बैक्टीरिया ही है मोनेरन्स का, ठीक है. और बैक्टीरिया डिजीज़ भी कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया बेनिफिट भी दे सकता है ह्यूमन बॉडी को या कोई भी अदर ऑर्गेनिजम्स को. तो इट मीन्स कि जो उनका बिहेवियर है या जो उनका मोड ऑफ एक्शन है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स वे में ही होगा, तभी ये हमको डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं बैक्टीरियंस और हमको बेनिफिट भी दे सकते हैं. सो दैट्स वाई देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट देयर बिहेवियर, जब हम इनके बिहेवियर की बात करते हैं, या हम इसको आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इनका जो वो मोड ऑफ एक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है. Now they show the extensive metabolic diversity. ये extensive metabolic diversity show करते हैं, यानी कि ये अलग अलग diversity show करते हैं. And okay, now coming on to the nutrition. तो जब हम इनके nutrition की बात करते हैं तो they can be an autotrophic mode of, they can also show autotrophic mode of nutrition, or they can also show the heterotrophic mode of nutrition. What do you mean by autotrophic? Autotrophic means the organism which can make their own food. ऐसे organism जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, those organisms are called as what? Autotrophic organisms. And the organisms which are dependent on the other organism for their food, or the organism which cannot make their own food, are called as heterotrophic organism. Now next is autotrophic के अंदर भी further 2 types होते हैं. One is photoautotrophs and the another is the chemoautotrophs. What is the difference between them? आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा. photo means light और chemo means chemical. सो फोटोऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग दी ऑर्गेनिक फूड एंड फॉर the formation of the ATP from the inorganic compound. किसी भी inorganic compound से वो organic food को बना सकते हैं और वो ATP का production कर सकते हैं with the help of the light, with the use of the light is called as photoautotrophs. और जब हम chemoautotrophs की बात करते हैं तो chemoautotrophs को light की ज़रूरत नहीं होती.
केमिकल रिएक्शंस ही इनके लिए बहुत इनफ होते हैं, ठीक है। सो दे यूजेस द केमिकल रिएक्शन टू जनरेट द एटीपी एंड द ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये केमिकल रिएक्शंस को कैसे यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस खुद से बनकर आती हैं हवा में या फिर ये खुद क्या करते हैं, मतलब या फिर केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कीमो ऑटोट्रॉफिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, दैट ऑर्गेनिज्म विल यूज द ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज करेगा ताकि वो किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सके, और जब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा देन इट विल प्रोड्यूस द एटीपी ऑल्सो एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो, या फिर उसके लिए वो एज एन ऑर्गेनिक फूड होता है, ठीक है। तो जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनका एग्जाम्पल कैन बी द ग्रीन प्लांट्स और द साइनोबैक्टीरिया एंड द कीमो ऑटोट्रॉफ्स की जब हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो थायोबैसिलस स्पीशीज भी हो सकता है एंड ऑल्सो द नाइट्रोजोमोनास स्पीशीज। नाइट्रोजोमोनास स्पीशीज जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनियम को नाइट्रेट के अंदर। So remember these things, okay? Now coming on to the heterotrophic. Heterotrophic में भी further division है. First is the free living. Free living means what? कि वो freely रहता है, वो किसी भी mutual relationship के अंदर नहीं रहता, किसी भी organisms के साथ में close association में नहीं रहता। बट क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं तो इट मीन्स कि ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो करते ही होंगे फॉर देयर फूड, बट डिपेंड करते हैं बट ये क्लोज एसोसिएशन में नहीं रहते या फिर ये म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं शो करते, ठीक है। तो जो फ्री लिविंग होते हैं उनके अंदर फर्दर टू टाइप्स आते हैं, वन इज सिनर्जिज्म एंड वन इज द एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म यानी कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा मेंबर का जब इंट्रैक्शन होता है तो वो सारे मेंबर, जिन भी मेंबर्स का इंट्रैक्शन हो रहा है, दो मेंबर का इंट्रैक्शन हो रहा है या दो से ज़्यादा मेंबर का इंट्रैक्शन हो रहा है, वो सारे मेंबर्स इक्वल सपोर्ट करते हैं फॉर द इफेक्ट या सेम पोटेंशियल से इफेक्ट देते हैं, शोइंग द इफेक्ट विद द सेम पोटेंशियल, ठीक है। बट एंटागोनिज्म की जब अपन बात करते हैं तो एंटागोनिज्म क्या करता है कि जब दो और दो से ज़्यादा मेंबर्स का इंट्रैक्शन होता है एट दैट टाइम एक मेंबर तो उसमें हार्म रहता है, एक मेंबर तो बेनिफिटेड रहेगा, बट जो सेकेंड मेंबर है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट मेंबर, मतलब एक मेंबर के वजह से जो दूसरा मेंबर है वो या तो हार्म हो जाता है या अपनी एक्टिविटी को वो इनहिबिट कर देता है। इट विल इनहिबिट हिज और हर एक्टिविटी, वो अपनी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच शोज द न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप एंड द क्लोज रिलेशनशिप। क्लोज रिलेशनशिप उन्होंने करा बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन की वजह से वो क्लोज एसोसिएशन करते हैं या क्लोज रिलेशनशिप करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, पैरासिटिक। पैरासिटिक आर पैरासाइट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी होस्ट, एंड पैरासाइट्स में क्या होता है, जो पैरासाइट खुद होता है वो तो बेनिफिटेड रहता है क्योंकि उसको तो हमेशा खाना मिल गया, बट जो होस्ट होता है वो हमेशा हार्म रहता है क्योंकि पैरासाइट ऑलवेज ईट्स अप दी होस्ट को वो खा जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कमिंग ऑन टू द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो डिफरेंट शेप्स होती हैं। दीज शेप्स यू हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस। सो द फर्स्ट इज कोकस या कोकाई भी हम इसको बोल सकते हैं, बेसिलाई, विब्रियो एंड द स्पाइरल शेप। तो जो कोकाई शेप होती है वो स्फेरिकल इन नेचर होती है, यू कैन सी द इमेज ऑल्सो। बेसिलाई जो होती है वो रॉड शेप होती है, विब्रियो इज द कॉमा शेप, और जो स्पाइरेला होती है वो बिल्कुल स्पाइरल शेप में होती है या हम कह सकते हैं जिगजैग वे में होती है। जैसे आपने जो पहले लैंडलाइन फ़ोन्स आते थे उन लैंडलाइन फ़ोन्स का जो वायर होती थी राउंड वो देखी होगी, तो बिल्कुल उस वायर के जैसे होते हैं जो स्पाइरेला बैक्टीरियाज होते हैं। ना कोकस के अंदर इनका डिफरेंट शेप्स तो होती है, शेप्स के साथ साथ इनका डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी होता है। जैसे अगर एक ही कोकाई प्रेजेंट है तो उसको अपन कोकस बोलते हैं, ठीक है। अगर दो कोकाई प्रेजेंट है तो उसको हम डिप्लोकोकाई बोलते हैं। तो कोकस का एग्जाम्पल क्या होगा, कोकाइडियोसिस। डिप्लोकोकाई मीन्स जब दो कोकाई साथ में मिल जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई का एग्जाम्पल कैन बी द गोनेरा।
ओके, स्टेफाइलोकोकाई मीन्स, अब आपको यहाँ पे पिक्चर में ही दिख रहा होगा, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसके अंदर, या फिर हम कह सकते हैं ट्राइंगल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो जब ग्रेप लाइक, वो पूरे बंडल्स में होते हैं, एक साथ होते हैं, झुंड में होते हैं सारे कोकाई, ठीक है। तो जब सारे कोकाई एक साथ होते हैं, झुंड में होते हैं, बंडल्स में होते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एंड दैट ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेफाइलोकोकाई। और स्टेफाइलोकोकाई का एग्जाम्पल क्या है, जितनी भी स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज होती हैं, जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टेफाइलोकोकाई ओरियस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई मीन्स अगर चेन में अगर कोकाई प्रेजेंट है, अगर कोकाई की अरेंजमेंट इन अ चेन है, सिंगल चेन के अंदर है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई, एंड द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई इज टॉन्सिलाइटिस। देन नेक्स्ट इज व्हाट, सार्सिना। सार्सिना क्या होती है कि जब क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि जब 8 कोकाई प्रेजेंट होते हैं और वो क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सार्सिना, एंड द एग्जाम्पल ऑफ सार्सिना इज सार्सिना ल्यूटिया। नेक्स्ट इज टेट्राड। टेट्राड में क्या होता है कि ओनली 4 कोकाई आर प्रेजेंट, और वो एकदम स्क्वायर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज टेट्राड, एंड द एग्जाम्पल ऑफ टेट्राड इज माइक्रोकोकस स्पीशीज। नाउ नेक्स्ट इज द बेसिलस। अभी हमने कोकाई का अरेंजमेंट देखा, नाउ नेक्स्ट विल बी सीइंग द अरेंजमेंट ऑफ द बेसिलस। बेसिलस में क्या होता है, एक सिंपल मतलब रॉड लाइक शेप में, रॉड की जितनी लेंथ होती है उसी लेंथ में जब उसके एंड एकदम राउंडेड हो जाते हैं, ओवल शेप में राउंड हो जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कोकोबैसिलस, एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस कोकोबैसिलस इज व्हाट, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेसिलाई। बेसिलाई यानी सिंगल रॉड शेप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिलाई, एंड द एग्जाम्पल इज लैक्टोबैसिलस। डिप्लोबैसिलाई, वही जैसे हमने कोकाई का देखा था कि जब 2 बेसिलाई आपस में जुड़े हुए हो, दो रॉड शेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुड़े हुए हो आपस में, दोज आर कॉल्ड एज डिप्लोबैसिलाई, एंड द एग्जाम्पल इज व्हाट, कॉक्सिला ब्रूटनी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, पेलिसेड। पेलिसेड यानी जैसे मैच स्टिक होती है, माचिस होती है ना, माचिस जिस तरह से अरेंजमेंट माचिस का जिस तरह से होता है इन अ मैच बॉक्स, सेम उसी तरह से रॉड शेप जो ये बैक्टीरिया है इनका अरेंजमेंट होता है, एंड देन दे आर कॉल्ड एज व्हाट, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इनको, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिये। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रेप्टोबैसिला। वही जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई था कि चेन के फॉर्म में, एक चेन के फॉर्म में इनका अरेंजमेंट था, सिमिलरली यहाँ बेसिलाई का भी चेन के फॉर्म में अरेंजमेंट है, एंड द एग्जाम्पल कैन बी द बेसिलस सबटिलस। ये जो बेसिलस सबटिलस होता है ये बहुत ही इजीली फाउंड हो जाता है, और इसको जब हम मतलब जब आप और सीनियर क्लासेस में जाएंगे, जब आप मास्टर्स करेंगे, या हो सकता है आपके अभी 3rd ईयर में भी जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, एट दैट टाइम you might be using this Bacillus subtilis in your labs. Okay, now next is coming on to the Vibria. Vibria is a comma shape, it is a gram negative bacteria and it is an anaerobic bacteria, यानी in the absence of oxygen ये survive कर सकता है. It contains the flagella also for the movement and it is responsible for the food poisoning. Vibrio के जितने भी स्पीशीज होते हैं वो सारे के सारे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग. उसका सबसे एक बेस्ट और वी कैन से कॉमन एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरा, जिससे कॉलेरा डिजीज होती है. नेक्स्ट इज द स्पाइरुलम. स्पाइरुलम जो होते हैं दे लैक द एंडोफ्लैजेला एंड देयर एग्जाम्पल कैन बी द कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई. So this was about the shape of the bacteria and the arrangement of the shape of the bacteria, कि उनके arrangement कैसे होते हैं और बैक्टीरिया की shape कैसी होती है. Now next we have seen that Monarans को कार्ल वूज ने 1977 classify करा था. He has given the 2 groups. Which were those 2 groups? We have studied this part in the previous video also. Those 2 groups were what? Monarans are divided into 2 groups. One is Archaebacteria and one was the Eubacteria. Then Eubacteria is further divided into Cyanobacteria and the several other subgroups of the bacteria.
नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि कुछ बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जब हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये जो मोनेरा होता है ये 2 ग्रुप्स पे कार्ल वूज ने डिवाइड करा था, इसीलिए हम उसको अलग अलग पढ़ते हैं। वन इज आर्की बैक्टीरिया, 6 किंगडम में बता रही हूँ मैं आपको, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इस तरह से वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन जाता है, ठीक है। तो जब हम 6 किंगडम के लिए बोलते हैं तो कार्ल वूज ने ही वो 6 किंगडम दिया था, क्योंकि कार्ल वूज ने मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। वन वॉज द आर्की बैक्टीरिया एंड द अनदर वॉज द यू बैक्टीरिया। देन यू बैक्टीरिया में इन्होंने बोला कि यू बैक्टीरिया के अंदर जो साइनो बैक्टीरिया आता है दैट इज द अनदर ग्रुप, और जो सेवरल अदर सब ग्रुप्स है बैक्टीरिया के, बाकी जितने भी अलग ग्रुप्स हैं वो दूसरे ग्रुप्स में आएंगे, जिसको हमने कॉमन बैक्टीरिया ग्रुप नाम दे दिया। नाउ कमिंग ऑन टू दी आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर दी ओल्डेस्ट एंड दी एंशियंट बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट बैक्टीरिया हैं, या हम कह सकते हैं जो फर्स्टली इवॉल्व हुए थे वो थे आर्की बैक्टीरिया। दे आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स बिकॉज दे बिलोंग टू द मोनेरन्स ग्रुप, मोनेरन्स के सब डिवीजन है ये, तो ये यूनिसेल्युलर भी होंगे एंड दे आर ऑल्सो द प्रोकैरियोटिक इन नेचर। नेक्स्ट इज दिस सेल मेम्ब्रेन जो होती है आर्की बैक्टीरिया की, दैट इज मेड अप ऑफ द लिपिड्स, वो लिपिड्स की बनी हुई होती है। देन दे कैन रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन। नाउ व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन क्या होता है, हमने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं उस टाइम पे हम पढ़ते हैं फिजन, ठीक है, कि जब जो बैक्टीरिया होता है यानी जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 पार्ट्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, देन उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, देन वो सेल आपस में सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल शो एज अ पेरेंट सेल। और फिर वो कैसे खुद को प्रिडिक्ट करेंगे, जैसे कि वो पेरेंट सेल है, वापस से फिर जब उनका डिवीजन का टाइम आएगा फिर से वो सेल आपस में सेपरेट होने लगेगा, न्यूक्लियस सेपरेट होगा, साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा एंड देन दी होल सेल विल सेपरेट। तो अभी हम देखेंगे कि बाइनरी फिजन भी कैसे होता है। बाकी आप ये ध्यान रखना कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, इट विल रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द बाइनरी फिजन विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज जो इसका सेल वॉल, हमने सेल मेम्ब्रेन देख लिया आर्की बैक्टीरिया की विच इज मेड अप ऑफ द लिपिड्स, लिपिड्स की बनी हुई होती है। कमिंग ऑन टू द सेल वॉल, जो इसकी सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ द स्यूडोम्यूरेन, और वी कैन से दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड दी प्रोटीन्स। जब पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स मिलकर इसकी सेल वॉल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्यूडोम्यूरेन। और वो स्यूडोम्यूरेन का काम क्या होता है कि वो लाइजोसोम्स के इफेक्ट से इसको बचा के रखती है बैक्टीरिया को। अब लाइजोसोम का इफेक्ट क्या होता है, लाइजोजाइम जो है वो एक तरीके का एंजाइम होता है, और ये जो सेल होते हैं जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल को डीके करने का काम करता है, या वी कैन से कि डिस्टर्ब करने का काम करता है, ठीक है। सो it is a type of enzyme which is released by the immune system of the host which dissolve the cell wall of the pathogenic bacteria। pathogenic bacteria के cell wall को ये dissolve कर देता है। ना नेक्स्ट इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है आर्की बैक्टीरिया में, दैट दे कैन सर्वाइव अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट कैन बी द हेलोफाइल्स। हेलोफाइल मीन्स दैट इट इज़ द एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। द एग्जाम्पल कैन बी द हेलोबैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट इज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस यानी कि दे प्रोड्यूस द मीथेन गैस, मीथेन गैस को ये प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर फाउंड इन द मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये र्यूमिनेंट एनिमल्स के गट में भी फाउंड मिलते हैं। जितने भी र्यूमिनेंट एनिमल्स हैं जैसे कि काउज हो गए, बुफेलोज हो गए, उनके गट में भी ये मिलते हैं मिथेनोजेंस जो होते हैं। देन मिथेनोजेंस का जो एग्जाम्पल होता है वो खुद ही मिथेनोजेंस नाम से ही पता चल रहा है, मिथेनोजेंस नाम के बैक्टीरिया होते हैं।
नेक्स्ट इज थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन द हॉट सल्फर स्प्रिंग्स ऑल्सो एंड एट द हाई टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर पे ये होते हैं। और क्या टेम्परेचर होता है 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इट कुड बी द थर्मोप्लाज्मा एसिडोफाइलम। ओके, सो दीज बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी ये स्पेशलिटी होती है दैट दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑल्सो। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं या एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं उनमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। नाउ यू बैक्टीरिया जो होता है वो एक तरह से ट्रू बैक्टीरिया बोला गया है। आर्की बैक्टीरिया को हम फॉल्स बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं या फिर मोस्टली हम इनको एंशियंट या ओल्डेस्ट बैक्टीरिया बोलते हैं। बट यू बैक्टीरिया जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया जो है they are typically found in the water, soil and they are also living in or on the large organism। जो बड़े organisms होते हैं उनके ऊपर रहता है, उनके बॉडी के ऊपर रह जाएगा या उनके बॉडी के अंदर चला जाएगा। एंड they can also इनमें क्योंकि 2 ग्रुप्स होते हैं तो ये डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं और ये गुड बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। Next is they can respire both aerobically also and anaerobically also. They can move with the help of cilia, flagella and pseudopodia। यानी इनके पास मूवमेंट के लिए cilia भी प्रेजेंट है, flagella भी हो सकता है या pseudopodia भी हो सकता है। नेक्स्ट इज जो यू बैक्टीरिया होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वन इज साइनोबैक्टीरिया एंड अनदर वन इज द अदर बैक्टीरिया और वी कैन से सिंपली bacteria। Now let's see what is cyanobacteria। Cyanobacteria you all know that it is called as what, blue green algae। इसको blue green algae बोला है। और blue green algae इसको क्यों बोला है, on the basis of its color। ठीक है। नेक्स्ट इज दे आर हैविंग अ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए होता है उसके लिए, उसके अंदर, इसीलिए वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और इसीलिए जो इनका कलर है वो कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है ये एल्गी। नेक्स्ट इज दे आर यूनिसेल्युलर, दे आर कोलोनियल एंड दे आर फिलामेंटस ऑल्सो। देन दे आर मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। they are also surrounded by the gelatinous sheath। इनकी जो कॉलोनीज होती हैं ये आपस में कैसे रहते हैं, ये कोकाई शेप के होते हैं या फिर हम कोकाई शेप के ही होते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं हल्का बहुत जो आप उनका शेप देखोगे वो कोकाई शेप का होता है। तो ये आपस में चेन के अंदर सेटेड रहते हैं, इनका जो अरेंजमेंट रहता है वो चेन के अंदर रहता है और चेन के अंदर ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमेशा कॉलोनी में रहते हैं और इनकी वो जो कॉलोनी है वो किससे कवर्ड रहती है, इट इज कवर्ड बाय द जिलेटेनियस शीथ। जिलेटेनियस शीथ से वो कॉलोनी इनकी कवर्ड रहती है। देन नेक्स्ट इज सम ऑफ देम, जो कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे कैन ऑल्सो फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हाउ कैन दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, विद द स्पेशल सेल कॉल्ड हीट्रोसिस्ट। इनके पास एक स्पेशल सेल होती है दैट इज कॉल्ड एज हीट्रोसिस्ट और वो उसी हीट्रोसिस्ट से अपने एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। नेक्स्ट इज दे कैन मूव बाय द ग्लाइडिंग मोशन और द पेंडुलम लाइक मूवमेंट। देन दे कैन ऑल्सो फॉर्म द ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ये ब्लूम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं जिससे ये पता चलता है कि जो वो वाटर है वो हेल्दी नहीं है, दैट इज अ पॉल्यूटेड वाटर। Then their example can be the nostoc, anabina, spirulina और the oscillatoria। and oscillatoria और nostoc जो है इसमें से वो सबसे common example है। Now next coming on to the bacteria। So जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर द माइक्रोस्कोपिक, दे आर यूनिसेल्युलर इन नेचर, दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड दे वेरी इन द शेप और वी कैन से दे डिफर इन द शेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनका कि ये अलग अलग शेप के होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय द स्लाइम लेयर और द कैप्सूल। बैक्टीरिया भी स्लाइम लेयर या कैप्सूल से सराउंडेड रहते हैं। देन देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, म्यूरेन और वी कैन से पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये जो म्यूरेन और पेप्टाइडोग्लाइकन होता है ये क्या देता है इनको, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी ऑफ द केमिकल और द मैकेनिकल इंजरी। कोई भी केमिकल या मैकेनिकल इंजरी से इनको बचा के रखता है। नेक्स्ट इज देयर जेनेटिक मटेरियल इज द सर्कुलर डीएनए।
नाउ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप से हो सकता है, बडिंग से भी हो सकता है, बाइनरी फिजन से भी हो सकता है। हमने आर्की बैक्टीरिया में पढ़ा था कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाइनरी फिजन से होता है। ठीक है, तो जो बचे हुए बैक्टीरिया है मे बी उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों टाइप से भी हो सकता है या मे बी उनका सिर्फ बडिंग से ही होता है। Okay, so let's see what is the difference between the budding and the binary fission. Now this is what बर्डिंग रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें एक बर्ड की फॉर्मेशन होगी और वो बर्ड फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी और फिर वो डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से। बाइनरी फिजन हम देखें तो एक सेल का दो पार्ट्स में डिवीजन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइनरी फिजन। अगर इसी में एक फिजन के अंदर दो टाइप्स होते हैं, वन इज बाइनरी एंड वन इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी यानी एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है एंड मल्टीपल फिजन मीन्स दैट एक सेल बहुत ही सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टीपल फिजन। सो दिस वाज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर क्या सिमिलैरिटीज या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आर्की बैक्टीरिया जो है इट कैन लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑल्सो, बट यू बैक्टीरिया फाउंड इन और ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर वो सॉइल वाटर इनके अंदर ही मिलता है। ठीक है, बट एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं मिलेंगे वो जो यू बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं दैट कैन बी द सॉल्टी, हॉट टेम्परेचर, मीथेन, अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया जो होते हैं टोटली डिपेंड्स अपॉन द फूड, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, इन पे डिपेंड करते हैं। वो मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यू बैक्टीरिया अपने आप को चेंज नहीं कर सकता या अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडेप्ट नहीं कर सकता। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं दे हैव द डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन देन द यू बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया कैन ऑल्सो कॉजेज द डिजीज टू। मैंने आपको बताया यू बैक्टीरिया में वो सारे बैक्टीरिया आते हैं जो डिजीज भी कॉज कर सकते हैं या फिर गुड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो हमको कुछ हेल्प करें। ठीक है, अगर इनमें सिमिलैरिटीज देखें तो सिमिलैरिटी ये है कि ये मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं, दे आर द प्रोकैरियोटिक, दे आर यूनिसेल्युलर एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक और द हीटोट्रॉफिक। सी इन्होंने इसमें इसका रिप्रोडक्शन का भी सिमिलैरिटी नहीं बताया क्योंकि रिप्रोडक्शन इनकी अलग अलग होती है। आर्की बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है और यू बैक्टीरिया में दोनों तरीके से हो सकता है या फिर सिर्फ बडिंग या सिर्फ बाइनरी फिजन, कुछ भी हो सकता है। ओके, Now next this is the example of the moneron. So यहाँ पास में जो आपको डायग्राम दिख रहा है या इमेज दिख रही है that is of the streptococci. So example can be the streptococci, cyanobacteria, vibrio cholera, haemophilus influenza. Many examples are there of the monera. Now next coming on to the some practice question. So first is name the kingdom to which cyanobacteria belong. Then which type of bacteria can survive in extreme salty areas? Then what is the function of heterocyst? Fourth is write the 5 main important characters of monera. And then fifth is the explain the term algal bloom. We have studied जो cyanobacteria होते हैं वो bloom cause करते हैं, जो cyanobacteria होते हैं वो bloom cause कर देते हैं in the polluted water. So you have to explain that what is this algal bloom. वो algal bloom क्या होती है? So guys, this completes our today's lecture. If you find any query regarding today's lecture, then please let me know in the comment section below. Thank you so much to all my viewers. If you find this video is helpful, then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon, and also don't forget to share with your friends. Thank you so much.